Hello, guys. Good evening. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. Today, we do not have a star player with us, and we do not have our own uncapped Indian star player, Ankit Singh. He's a little busy. So it is going to be me and Krishna. And tonight, it is going to be light conversations about cricket, and we'll sort of take you through Group A, Group B, Group C, Group D. And we're all set for the World Cup from the 2nd of June. And शुरू करते हैं. We'll start from Group A, Krishna. So Group Before we A. start that, can we just ask our viewers to go and have a look at the podcast that we've recently done with Swapnil Singh? Yeah, it's quite interesting. Really It's love really that. interesting. Guys. Yeah. If you could just show a little bit of love there and just have a look at the podcast and of course like, share, and subscribe. Doesn't take long, doesn't take anything. Just a click. Done. That's the advertisement, guys. Now we'll talk to the podcast. Okay. Paid promotions. Okay. Anyways, Group A. Actually, let's start with Group D. We start with Group D. Okay. South Africa. What do you think? Good team? Bro, this is the group of death. मेरे को ऐसा लग रहा है कि see, at the end of the day, for me, I'll start off with Bangladesh. Okay, so Bangladesh, I think for Shakib Al Hasan, this is going to be a very very important World Cup. This might be his last because he's actually there since the first World Cup ever played, and he's represented Bangladesh in all the World Cups. And but yeah, one thing really tricky about Bangladesh is that somehow they've really not got themselves going in the T20 format. And that's something that even Shakibul Hasan admits कि उनका ना जो strong format है वो ODI है. उनका वो strong format ना T20 नहीं है और टेस्ट नहीं है. So, ये दो फॉर्मेट्स में वो किसी तरीके से अगर वो कर लें. एंड इवन रिसेंटली जो यूएसए के साथ सीरीज हुई है उनकी उधर भी क्या कहते हैं they've lost 2-1. So somehow I feel that it is going to be a very important series, at least from the Bangladesh this thing point of view, क्योंकि you need something, yeah, you need something to sort of get going. But on the other hand, I think South Africa and Sri Lanka should qualify from this group. If not, then, yeah, I mean it'll be a huge massive upset, yeah, because and ICC ने भी ना मतलब बढ़िया गेम खेला. बढ़िया गेम खेला. हमेशा उन्हीं के ग्रुप में डाल देते हैं साउथ अफ्रीका. 2007 वाली गलती तो नहीं करेंगे ना यार. और इंडिया पाकिस्तान में चला गया, कोई देखेगा. लेकिन पाकिस्तान को ना, so let's say for example, the last time in fact Ireland beat Pakistan, no, not last time but in a World Cup, was actually in West Indies. हाँ, हम भी तो आ रहे थे बांग्लादेश से. लोगों ने कहा कि अब पाकिस्तान को हम नॉस्टैल्जिक फील कराएंगे, उनको जो है हम वो वाली फीलिंग देंगे. तो उन लोगों ने आयरलैंड को उसी ग्रुप में डाल दिया. अभी चल ही रहा है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. आई वो महाकूट को इन लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है. महाकूट डालने लगा 140, 45, 50. आजम खान को बाउंसर डाला, बेचारा हिल भी नहीं पाया. इतना जोर से बॉलिंग करना चालू कर दिया. महाकूट मतलब खतरनाक कॉम्बो. नहीं, वो भी तेज डालेगा, ये भी तेज डालेगा. वो आदिल रशीद भी स्पिन कराएगा. मोइन अली जो मैं पता नहीं लोग मेरे को क्यों ऐसा बोलते कह रहे हैं इंग्लैंड थोड़ी आएगा. इंग्लैंड आएगा ब्रो. वेलकम टू इंग्लैंड. बांग्लादेश का जो कैप्टन है ना, मिस्टर शांटो, ही हैज कम एज अ कैप्टन आफ्टर अ लॉट ऑफ टर्मोइल. मतलब रिटन दास पहले था, उसने बोला भाई मैं नहीं करूंगा. शाकिब उल हसन बोला मैं भी नहीं करूंगा कैप्टनशिप. एंड दिस गाय टेक्स हिज कैप्टनशिप इंस्पिरेशन अ लॉट फ्रॉम, बोलूंगा तो गालियां देंगे बट MS धोनी. वे मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसने बोला है कि कैसे भाई भाई काम कूल रहते हैं, मेरे को भी ऐसे डिसीजन लेना है. एंड अ लॉट ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग की वजह से उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है इस बार बांग्लादेश टीम. ठीक है, बहुत अलग अलग मूव्स किए हैं, सब कुछ किया है उन्होंने. सो इस बार बांग्लादेश इज ऑल्सो कमिंग विद द फैक्ट कि जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है. सो इट्स नॉट अ टीम दैट आई वुड टेक लाइटली एट ऑल. तो यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. But yeah, Netherlands is a very good side. Netherlands is a very good side. They've got Bas de Leede, जो एक formidable batter है, and then you've also got Teja Nadi Namuru. He's also from क्या कहते हैं यहाँ से. He's from Visakhapatnam, and they've got Aryan Dutt. Yeah. वो तो पंजाबी खेल रहे हैं वहाँ पे. पर साउथ अफ्रीका का इस बार ये एडवांटेज है कि उनका कैप्टन है एड्रियन मार्कम.
Or everyone has said about Aiden. By the way, Aiden Markram has made Sunrisers win the SA T20. So South Africa में T20 हुआ था. Aiden Markram was the captain when they won. So they've very specifically chosen Aiden Markram because they feel that he's one person who looks at a team in a way that the batting order can change at any point in time. And Adrian Markram is like, if I can't go to bat and someone else bats better than me, that person is going to go bat. And the whole team right now revolves a lot around Markram because he's very cool, very composed. He does not get very agitated with things. He's not very animated. Plus, he's already won a tournament. So South Africa also is very, very careful. और वो distant stubs बहुत वगैरह जो यहाँ underrated है बंदा, बहुत ज्यादा underrated है बहुत that guy. underrated है Markram. मैं he got the captaincy of South Africa at a very very young stage in his career. ठीक है, उसके बाद I mean there was a lot of turmoil obviously उस Yeah. time. So but yes, I mean he really figured his way out किसी ना किसी तरीके से. But then of course Temba Bavua came in ये वो. But he's shown his class यार. मतलब not just in the one day format or the test format, but he's also a pretty good choice when it comes to the T20 format as well. तो वो चीज है. एंड आई रियली वांट साउथ अफ्रीका टू डू वेल यार. वो उनको देख के मेरे को हमेशा बहुत बुरा लगता है. But they've really got the team now this time around. Of course, there are a lot of controversies with the team also that has, been brought into the picture. But ठीक है यार, मतलब at the end of the day, they've somehow collectively put a good team, which kind of can be scary considering the fact that they are already right now, in the West Indies. They've played a few games now with the West Indies team also. So they've got a good match practice and plus वो सारे के सारे मतलब एक तरीके से ना T20 वो है. चाहे मार्करम को देख लो, चाहे आप क्लासन आ जाएगा अभी. किसी को भी देख लो, कोच को देख लो आप, डिकॉक आ जाएगा. सो देर ऑल एंड दे ऑल प्ले अ लॉट ऑफ लीग्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, सो वो एक चीज है जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. बट इसी ग्रुप में ठीक है, वन टीम विच इज देयर विच फैसिनेट्स मी क्वाइट अ लॉट. ठीक है, एंड नेपाल क्रिकेट की ना एक अमेजिंग स्टोरी है. ठीक है, सो लास्ट ईयर T20 के एशियन क्वालिफायर्स चल रहे थे इन द मंथ ऑफ नवंबर. 2 सेमीफाइनल होते हैं. बहरीन वर्सेस ओमान पहला सेमीफाइनल और यूएई वर्सेस नेपाल सेकंड सेमीफाइनल. नाउ ऑर्गेनाइजर्स ना एक गलती कर देते हैं. सो नेपाल बीइंग होस्ट उनको एक्चुअली बड़े स्टेडियम में खेलने को नहीं मिलता, उनको छोटे स्टेडियम में खेलने को मिलता है, विच इज इन मुल्पानी, अ डिस्ट्रिक्ट इन काठमांडू. ठीक है, अब इस स्टेडियम की कैपेसिटी 3500 की है पर ठीक है, टिकट्स की जो है डिमांड बहुत ज्यादा है. तो बोर्ड और पुलिस ने क्या किया, उन्होंने प्ली एक दे दी कि भाई आप प्लीज अपने अपने घर पे बैठ के मैच देखिए, हम इतने जनता को नहीं हैंडल कर. और सही में क्योंकि ग्राउंड में एक्चुअली इसे इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं. एक रात पहले वीआईपीज के लिए एक स्टैंड बनाया है, प्लेयर्स के लिए एक स्टैंड बनाया है. ठीक है, और वहां पे ना उस ग्राउंड के पास ना एक खेत था जहां गाय चरी जाती है, उसको लोगों ने स्पेक्टेटर्स के लिए कन्वर्ट किया है लिटरली. और एक मोबाइल टॉयलेट वैन था वहां पे. एंड पुलिस ने ना बैरिकेड्स इस तरीके से बना रखे थे कि मतलब थोड़ी सी पेरिफेरी बढ़ाई ग्राउंड की. सो का स्टेडियम था. बिफोर द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड they had 7,000 people in the stadium, and by the time Nepal won the game they had 20,000 people around the stadium. ठीक है, एंड उन लोगों ने इनोवेट कर करके मैच देखे हैं भाई. उन्होंने घरों के छत पे खड़े होके मैच देखे, और तू अगर फोटोज देखेगा ना उसमें से कोई बंदा कभी भी गिर सकता है, ऐसा लगेगा तेरे को. पेड़ पे चढ़ चढ़ के मैचेस देखे. सो द लव फॉर क्रिकेट इन दैट कंट्री इज क्रेजी ब्रो. सो I really feel कि मतलब यार नेपाल जैसी कंट्री अगर आती है, and in fact their boards, I'm sure that they would have probably somehow understood by now that this is a market that they can tap into. Yeah. Because इसके लिए है, जनता है, फैंस हैं जो देख सकते हैं उसको, जो देखना चाहते हैं उसको. Also for Nepal, this is after 10 years that they're making a World Cup appearance. And the first time they actually made an appearance was in 2014. So this is their second appearance in total. And hence this game was very, very important, just की हमने बात करी है. So, and of course, उसमें कई सारी अच्छी stories भी आई हैं यार. In the recent past, we've got Dipender Airi, who's hit sixes, and they've got that Karan MC करके उनका bowler है, who's a very good new ball bowler also. So yeah, I mean, I just hope कि Nepal has a good tournament, at least even if they are not able to qualify for the
next round, take fight there. And Yeah, this of group course. where it can happen. And hence I'm saying this is for me is the most interesting group. क्योंकि Group, yeah. श्रीलंका भी खतरनाक है, साउथ अफ्रीका भी खतरनाक है, नेदरलैंड्स कभी भी किसी को भी अपसेट कर सकता है, Yeah. बांग्लादेश का कोई भरोसा नहीं, नेपाल का भी अब कुछ भरोसा नहीं भाई खतरनाक. This is anyone's World Cup, and we are repeating that over and over. But Okay. it is going to be ours. It can be anyone's, but it can be ours this time. Ours also. Yes. Yes. ऐसा नहीं है. We are patriotic guys. Come on. Group C: New Zealand, West Indies, Afghanistan, Uganda, and Papua New Guinea. New Zealand we've spoken about. West Indies we've spoken about. Afghanistan is now full team that is ready and plays test matches, T20 ODIs. The Afghanistan players play league cricket around the world, right from Rashid Khan to Nabiz and someone who's propelled the game in a country like that. I'm not very well versed with Uganda and Papua New Guinea at the moment, but if they manage But to I know a qualify, little bit about them. I mean, as far as I'll start with Afghanistan. So Afghanistan का ना, ठीक है, even after the Taliban takeover as such, the one thing that hasn't disrupted is cricket. ठीक है, yeah, क्या ना, जो अफगानिस्तान का बोर्ड था, ठीक है, it had to shift bases to UAE, and in fact a lot of people were thinking कि यार अब शायद हो सकता है कि यहाँ पे कभी जिंदगी में क्रिकेट खेल ही ना जाए, and of course इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जा ही नहीं सकते वहां पे, वो पूरी तरीके से बैन हो गया. बट वन थिंग दैट हैज स्टेड is cricket because Taliban apparently supports cricket. ठीक है, सो उनका जो है एक क्रिकेट का फिर भी बेस बना हुआ है, एंड स्टिल दे आर नॉट लिटरली स्टेइंग देयर, बट हाँ वो अलग अलग लीग्स जाके वो लोग खेलते हैं वहां पे. एंड फॉर दोज पीपल टू कम आउट एंड produce the results that they produce, ठीक है, every now and then, and look at the 2023 World Cup 50 over का, ठीक है, their board doesn't have resources. जैसे तैसे तो मतलब वो किट ऑर्गेनाइज करके, स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइज करके जैसे तैसे वो जाते हैं, ठीक है, एंड एंड उसके बाद आके मतलब आप पाकिस्तान को हरा देते हो, इंग्लैंड को हरा देते हो इन अ 50 ओवर फॉर्मेट. नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू दैट. इवन बिफोर 50 ओवर वर्ल्ड कप एवरीवन इज लाइक नहीं यार, अफगानिस्तान तो इज अ T20 साइड, सो दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू 50 over, but they did really well. almost. Now this is a T20 World Cup. Yeah. They will thrive. They thrive on this format. और उनके स्पिनर्स हैं यार, बहुत सारे स्पिनर्स हैं उनके पास, एंड वेस्ट इंडीज इज द परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड फॉर spinners. Sri Lanka is also going with a very heavy spin heavy. Yeah, and Afghanistan is going with 6 all-rounders in total. 6 all-rounders in total. Look at the batting depth that they're gonna have, man. उनका ना मेरे को जब लगता है मुझी सिर्फ वही बैटिंग नहीं करता, बाकी सब बैटिंग, और वो फील्डिंग भी नहीं कर पाता. वो बंदा फील्डिंग भी नहीं कर पाता ना, वो बैटिंग कर पाता. मैक्सवेल का कैच ही ड्रॉप, ठीक है चलो एनीवेज. बट इट इज गुड. अफगानिस्तान, पापा न्यू गिनी का भी एक खतरनाक है कि मतलब पापा न्यू गिनी इज एक्चुअली कमिंग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज देयर, नहीं मतलब this is their second World Cup. The last World Cup also they played, but look at the amount of effort that they had to take, because that last World Cup was the first World Cup that they played. इतने टाइम से वो क्वालिफाई करने की कोशिश ही कर रहे थे. और जब मैंने आई थिंक ये बताया भी था कि जब कोविड हुआ तो मतलब 5-5 के ग्रुप बना के अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे ऑनलाइन, ऐसे जैसे अभी हम दो कर रहे हैं वैसे उनकी कोचिंग होती थी. इमेजिन. एंड वहां पे तो नेटवर्क भी कहते हैं कि बहुत बुरा है, बिकॉज इट्स अ कंट्री इन एक्चुअली ओशन, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनको स्ट्रगल होता है, एंड स्टिल दे आर कमिंग अप एंड competing with the best. Now the point here with associate nations is that हमारे लिए ना, या फिर for a country like ours or Australia or England, they are all full-time professionals playing cricket. When it comes to associate nations, for them they are like यार मेरा part time चल रहा है, and to come with them, ठीक है, वो बहुत अनफेयर भी है, बट या आई मीन यू गॉट टू स्टार्ट समवेयर, राइट? मतलब अगर आपको स्प्रेड करना है क्रिकेट तो. सो दैट इज पापा न्यू गिनी फॉर यू. And as far as Uganda is concerned, oh my God, there are a lot of Indians who are playing in Uganda. बहुत सारे हैं भाई, बहुत. And Uganda is one beautiful country where probably a Pakistani origin guy and an Indian origin guy both are playing together. Yeah. One of the countries. One of the countries. So yeah, I mean it's going to be interesting, but
I think it's going to be too much to ask of Papua New Guinea and Uganda to Yeah, too uh, early. Yeah, next to New Zealand and West Indies. Amongst the three, New Zealand, West Indies, and Afghanistan, I think New Zealand and West Indies should really fancy their chances. If West yeah, Indies don't, then there's something really wrong because they have to. yeah, And yeah. They will. Yeah, you sure. know, they surely are under a lot of pressure because one thing कि वो घर पे खेल रहे हैं और हम्म, दूसरा भाई बोर्ड के पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है उनके लिए, यही है जो है वो। करना है भाई उनके लिए वो करना ही पड़ेगा सो देयर पीपल आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बट न्यूजीलैंड बीइंग न्यूजीलैंड वी ऑल नो वो हाँ, आएंगे अपना एक वो मेथड हमें हराएंगे लेकिन बाकियों को, बाकी के सामने हार जाएंगे। हम हमें क्यों हराए फिर? पर हमें भी उनका जीतने method- देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना उनका हमेशा एक मेथड रहता है कि नहीं हाँ, और उनको ना अपने स्ट्रेंथ देखने ठीक है और बाकी कुछ दिखता नहीं है उनको और वो अपने आप उसमें खेल के डेटा बेटा को लेके उनको मालूम है कि वो किस तरीके की दे डोंट हैव फ्लैम्बॉयंस लाइक अ विराट कोहली हाँ, और हाँ, हाँ। वो पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं, लेकिन फाइनल सेमीफाइनल तक कोई एक टीम आ जाएगा, हम लोग, "भाई, तू किधर से है?" अरे, दरवाजा खुला था। स्पॉट ले लिया है भाई हमने एक स्पॉट ले हाँ, लिया है हाँ भाई, हमारा है क्या, खेलना है हम लोग। But Kane Williamson is the Williamson is the captain of New Zealand. Like they at this day and age, if you see Kane Williamson, everybody's like, अरे ये तो वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इसको T20 नहीं आता है, बट है यार, वो कैप्टन है न्यूजीलैंड का, and that's backing him a lot. ग्रुप बी, हम्म वेरी स्मार्टली, ग्रुप बी का मैच उन्होंने 8 जून को रखा है शायद, या 7 जून को, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। छोटा एशिज इन वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ कौन है? नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान। रिस्क नहीं लेने का। ये बहुत मतलब ये वैसा वाला ग्रुप है कि इट इज इंग्लैंड। वेरी अनफेयर टू पर स्कॉटलैंड एक अच्छी टीम है यार स्कॉटलैंड ने हाँ, बचपन में देखते थे हम लोग स्कॉटलैंड को, पता है क्यों? हाँ, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ब्लू कलर का वो जर्सी होता था, बस क्रॉस उनका फ्लैग ऐसा रखता था। वो याद है 2003 वर्ल्ड कप में था। इंडिया के ग्रुप में थी पहले वाले वर्ल्ड कप में हाँ, सबसे हाँ, पहले हाँ, वाले वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान और स्कॉटलैंड रहने की एक हाँ, ग्रुप में 3 लोग थे हाँ, और ठीक है। अभी इनफैक्ट इवन इन द वर्ल्ड कप दैट हैपेंड इन दुबई हम्म, and also I think in Australia if I'm not wrong they gave a pretty good fight हाँ पर चलो ठीक है यार हार गए but हम्म, yeah but it's not going to be fair on anyone's part to actually expect them to qualify where they have Australia and England in that group ऑस्ट्रेलिया 9 लोगों से मतलब एक तरीके से सपोर्ट स्टाफ जिता के मतलब पिला के तो मतलब नामीबिया से जीत गई वार्म गेम एंड दे वर लिटरली थ्रैश्ड बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्किल सेट में बहुत ज्यादा फर्क फर्क होगा। बहुत हम्म, ज्यादा सो हम्म। या आई मीन विदाउट एनी डाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड क्वालिफाई फ्रॉम ग्रुप बी Then there is Oman, but I have not really read about Oman, to be honest. I still have to see what their team is. Then we come to Group A. There is ओमान Canada. वैसे is an interesting this thing उनका जो उनका एक प्लेयर है आई थिंक इज 43 years old हाँ, हाँ, मैंने हाँ, है कुछ ऐसा। He's the eldest in the entire this thing and उनका कैप्टन का मैंने स्टोरी बताया था कि हाँ, हाँ। 2019 में उसको कैंसर है वो बेचारा पाकिस्तान में जाके अपना इलाज कराया ठीक but है। he's fit and fine now he's fit and Yeah. fine and That means they have good medical facilities in Pakistan. If it's fine, then I didn't say him. I just said that he went to Pakistan. India says that I'm just reiterating that means there are good medical facilities in Pakistan. yeah, That's what I'm saying. Okay, now we come to Group A. Group A has Canada, where yeah, USA, Pakistan, and India. Surprisingly, every time ICC event happens, India and Pakistan always come in the same group. Some method, some method Krishna Pati will expect. मेथड ये इसे कहते हैं स्क्रिप्टिंग पता है क्या अगर फाइनल होना है तो या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हो जाए ताकि व्यूअरशिप हाँ, का मिले हाँ। पूरा एड पूरा स्पॉन्सर वॉन्सर भी खुश या वेस्ट इंडीज बोर्ड इंडिया पाकिस्तान में ही कमा लेगा भाई, वो बोलेगा इंडिया पाकिस्तान में ही कमा लेगा, वो लोग जितना कमाने का है उतना। also ये भी तो देखना ग्रुप्स आर आल्सो मेड इन अ वे कि इंडिया और पाकिस्तान चाहे भी तो सेमीफाइनल में भी नहीं आ सकते हाँ, वो हाँ, आएंगे तो फाइनल में आएंगे अगर जीतेंगे सारे मैच तो वो हाँ, आएंगे हमारे फाइनल में आएंगे। हाँ,
या तो बड़ा करो या तो कुछ मत करो। D1 वो उस हाँ, तरीके से डिजाइन किया हुआ है हम लोगों ने परम्यूटेशन ये सबका। बन बी बनाना एक ही बार होगा या मैक्सिमम 2 बार बस। एक साल में 10 साल में एक बार देखने मिलेगा, देख लो। सूर्य ग्रहण है ये, सूर्य ग्रहण, देख लो इसको। बट 2007 वर्ल्ड कप जो था ना, तो हम्म। उसमें मतलब उन लोगों को ना सरप्राइजिंगली मिल गया 2 बार। नहीं तो अगर किसी को हाँ अंदाजा ही नहीं था यार, एवरीवन वाज हाँ टेकिंग हाँ, एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। या और दो कंट्रीज जो पहुंची वो पहुंची इंडिया एंड पाकिस्तान में, दैट मैं वाज बोला ना, सबसे लेट हम लोग गए थे। हाँ। सबसे लेट हम लोग गए थे, इंडिया पाकिस्तान लास्ट टीम था अराइव करने के लिए, वो भी मिन्नत मांगा, बोला प्लीज आ जाओ यार, भी सब रेडी है यार। भाई तेरे को पता है 2007 वर्ल्ड कप से पहले ना, दे प्लेड वन प्रैक्टिस गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। हम्म ठीक है, उसमें हम्म। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सचिन प्लेड, दैट वाज हिज डेब्यू गेम। उसका मना कर दिया था उन्होंने कि हम नहीं उसके जाएंगे। बाद मना कर दिया, नो वन टुक इट सीरियसली आल्सो। या फिर ना, उसके हम लोग बाद नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप जीत खेल, गए। एंड फिर लुक व्हाट इट हैज डन टू द गेम। पर हाँ। अगर तू पता, एक बात बता कि इंडिया अगर नहीं जीतती वो वर्ल्ड कप, तो इतना हम्म। बड़ा वो होता ये गेम, कौन सा गेम? टी T20। ट्वेंटी वाला फाइनल? हाँ, क्यों नहीं होता है यार। गेम नहीं, मैं फॉर्मेट बोल रहा हूँ। यार ये पता है, सी दिस बिकॉज इफ यू दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट हेल्प्ड स्प्लोरिंग द IPL। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आईपीएल बहुत आईपीएल बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है, एवरीवन वुड हैव वॉच्ड द आईपीएल रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, लेकिन इससे पहले ना 2006 में भी वेस्ट इंडीज वाज ऑलरेडी प्लेइंग अ सॉर्ट ऑफ टी 20 क्रिकेट। वो लोग ना वेस्ट इंडीज में विंड बॉल खेलते हैं बहुत ज्यादा। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से ये आपका सुनील नारायण, कायरन पोलार्ड, ये बहुत ज्यादा विंड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज व्हाई इफ यू सी, और उनके यहाँ ना केज मैचेस होते हैं, मतलब आपने सामने मारा तो ही छक्का, इधर मारा उधर मारा तो रन भागना है। तो इसलिए देख, कायरन पोलार्ड हमेशा ना पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेट सिक्स मारने का, और वो विंड बॉल इधर उधर घूमता है, तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तेज होना चाहिए। दैट इज वेयर सुनील नारायण सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड द नुआंसेस ऑफ अ टी 20 गेम। देन फिर वो बीच में वो आया था पता है, स्टैनफोर्ड 2020, जिसके बंदे को जेल कर दिया था 110 साल तक। दैट ब्रॉट रिवाइवल इन टी 20 क्रिकेट। फिर ये अपन लोग आईपीएल आए 2008 में, जैसे सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आईपीएल खेलो, सबसे बड़ा है। फिर धीरे धीरे वर्ल्ड कप श्रीलंका जीत गया, श्रीलंका फाइनल्स में पहुंची एक बार, वो भी जीती, पाकिस्तान भी जीती, वेस्ट इंडीज 2 बार जीत गया, इधर बेन स्टोक्स को रिमेंबर द नेम। तो वो मजा आने लगा यार, 1.5 घंटे का एंटरटेनमेंट है, चौका छक्का देखने मिलेगा। और अब डेटा वेटा डाल के बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना दिया कि देखो स्लोअर वन, 7 तरह का बॉल है, वैसा खेलो वैसा खेलो। सो नाउ एवरीवनस इन्वेस्टेड सेइंग ओके दिस इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, दिस इज आल्सो अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी। तो और आईपीएल ने यार कितने लोगों का करियर बना दिया यार, मतलब बेचारे छोटे छोटे गांव से जो शायद सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के रह जाते, कभी हमें पता नहीं चलता कि ऐसा टैलेंट है। अफगानिस्तान, राशिद खान कैसे प्रोमिनेंस में आया? व्हेन ही जॉइंड द आईपीएल, द फर्स्ट एसोसिएट मेंबर का प्लेयर लेके आना BBL आईपीएल में। गौतम गंभीर ने मना किया था पता है, व्हेन दे स्काउटेड राशिद खान, उसने बोला गौतम गंभीर को कि ये, बोला नहीं यार ये नहीं लेने का, एंड ही गॉट गौतम गंभीर आउट। देन गौतम गंभीर सेड नाइस स्काउटिंग। तो जैसे नबी आया, फिर जैसे ऐसे बहुत से प्लेयर जब आईपीएल में खेलने लगे ना एसोसिएट नेशन से, देन पीपल स्टार्टेड टेकिंग एसोसिएट नेशन आल्सो वेरी सीरियसली। फिर बीबीएल खेले, सीपीएल खेले, वो कनाडा टी 20 भी चलता है आजकल तो। तो फिर अबू धाबी बहुत लोग BBL से आए हैं हमारे पास। बीपीएल है, बीबीएल है। अरे एबी डिविलियर्स जाके खेलता है यार टी 20 लीग। हांगकांग ब्लिट्स करके कुछ होता है, हाँ, एवरी, हाँ पब्लिक खेलता है भाई। नेपाल में there is something that was organized in 2018। ठीक है, it was called as the Everest League। हम्म So there were a lot of, and that's what is मतलब ये सारी मतलब ना लीग ऐसे बनी है। हाँ वहां पे उन लोगों ने भी लीग शुरू किया, कुछ गिनती के इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। सो दिस इज गाय कॉल्ड केविन ओब्रायन, आयरलैंड का। हाँ 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 हाँ, आइलैंड का। कमेंटेटर नहीं था। और केविन ओब्रायन पता है किसका किसका फ्रेंड था? एंड्रू लेनर्ड का। तो उसने बोला मैं ओ अपने दोस्त को बुला लूं, कहता हाँ बुला ले। वो आ गया, और वो तब से बेचारा वो 6 साल से वही कमेंट्री कर रहा है वहां पे। केविन ओब्रायन, नील ओब्रायन, 2 प्लेयर थे मेरे हिसाब से। And Andrew Leonard has in fact written a beautiful article, and plus he has his own YouTube channel also where he covers quite a lot of associate nations ka wo, because he's now literally the flag bearer of associate हम्म nations and their cricket. तो उसका देखना मतलब it is very interesting।
And before our viewers hop on to his YouTube channel, ये वाला video please देख लेना पूरा. So I was telling how Rashid Khan sort of was one of the first associate players to come in the IPL and everyone wanted to do that. 2010 में अली खान करके एक बंदा था जो पाकिस्तान से यूएसए आया. उसने अपने सारे सपने तोड़ दिए क्रिकेट खेलने के, वहां पे कोई क्रिकेट नहीं हुआ. उसने एक कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम था क्रिकेट वायरलेस, जिसमें वो मोबाइल सेल्स मैनेजर था और कोई कंपनी का लेना देना नहीं था क्रिकेट से. ठीक है. उसके बाद उसके अंकल बोलते भाई मैं क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे साथ आ जाओ. ठीक है, मैं आ जाता हूँ. फिर 2013 में वो एक मार्क कुरैशी करके बंदा होता है, उसको मैसेज भेजता है कि मेरे को वो जो यूएस ओपन आप खेलते हो ना, T20 वाला यूएसए में, वो यूएस ओपन में मेरे को चांस चाहिए. बोला ठीक है, तू आने का फ्लाइट का टिकट का खर्चा दे, तेरे को अगर अच्छा लगा और अच्छा खेला तो जाने का टिकट मैं देता हूँ. तो वो बहुत अच्छा खेला उसको, ठीक है, उसको जाने का टिकट उसने दिया. 2015 में आईसीसी अमेरिकास करके होती है जहां पे उसने कॉटनी वॉल्श को बहुत इंप्रेस किया. सो एवरीवन वाज लाइक ग्रेट ग्रेट. 2016 he played the first Caribbean Premier League match from Guyana Warriors and on the first ball he got Kumara Sangakkara out. ठीक है. फिर 2018 तक वो कोई भी सीपीएल गेम नहीं खेलता है. फिर 2018 में उसका बॉस बोलता है कि भाई देख, तेरा नहीं चल रहा है क्रिकेट का करियर, तू इतना छुट्टी ले रहा है, तू या तो नौकरी छोड़ दे, मैं तेरे को इधर लॉजिस्टिक्स मैनेजर बनाता हूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. पर 2017 में उसे बात याद आई ड्वेन ब्रावो की. उसने बोला था डोंट गिव अप, यू विल मेक बिग थिंग्स. 2018 ड्वेन ब्रावो टेक्स हिम टू G20 इन ग्लोबल T20 इन कनाडा वेयर ही मीट्स वकार यूनिस एंड ब्रावो. बोथ मिलके उसको ट्रेन करते हैं, रिवर्सिंग वगैरह. इतना इंप्रेस हो जाते हैं. 2008 में ब्रावो उसको ट्रिनिडाद एंड टोबैगो नाइट राइडर्स में लेता है, ठीक है, जहां पे बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देता है. उसके बाद 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स उसे लेती है इन दी आईपीएल टीम, बट कुड नॉट प्ले बिकॉज ऑफ अ साइड स्ट्रेन. His teammates call him the Yorker bowling machine because he bowls Yorkers consistently in the death at 145 kilometers an hour. He swings the ball both ways at 140 and 135. लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, इसको ना बहुत डीमेरिट पॉइंट्स मिला और बहुत फाइन मिला. इसका एक मैच था जर्सी टीम के सामने, ठीक, लास्ट विकेट उसका ले लिया. वो उस इतना सेलिब्रेट किया, वो बैट्समैन के पास चला गया, उसको नाक नोज टू नोज टच करके बोला निकल यहाँ से, ऐसी. ठीक है. उसने सीपीएल में भी जाके लड़ाई कर लिया, उसको वहां पे भी फाइन लगा. इनफैक्ट तो अगर उसका सीपीएल का पुराना मैच देखेगा ना तो ऐसा वो आर्म बैंड के ये वो करेगा. ठीक है, इतना अग्रेसिव प्लेयर है वो. एंड दिस गाय इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, and Shivam Dube. This guy is either going to, I don't know what's going to happen if he sledges Virat Kohli or someone, but this guy is aggressive. This guy is also one of those flag bearers of USA cricket, who's now a poster boy saying, our boy was once selected for the IPL, the first American to do that. So, Ali Khan from Pakistan playing for USA against Virat Kohli is my bet. In fact, USA की टीम में एक हरमीत सिंह करके भी बंदा है. हाँ. हरमीत सिंह इतना अच्छा था, मुंबई के लिए खेलता था. उसे एक एक्स क्रिकेटर ने बोला ही रिमाइंड्स मी ऑफ बिशन सिंह बेदी. भाई तू सोच सकता है, इतना टैलेंटेड बंदा था वो. और वो मोनार्क पटेल, वो 2008 से खेल रहा है यूएसए के लिए. कैप्टन बन 2008. गया भाई. हाँ, तो कैप्टन बन 2008 से खेल रहा है. वो Then there is नेत्रवलकर ने बोला कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, इसको ले लो. हाँ, फिर वो नेत्रवालकर भी है. फिर एक बंदा है एरन जोन्स जो कैरेबियन से है, और कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड से. इन लोगों ने हर देश से एक एक बंदा लेके इतना पैसा खर्चा करके ये लोग को लेके आया है. भाई यूएसए इज अ टीम टू रेकन. दे हैव बीटन बांग्लादेश. आई एम ओनली रिमाइंडिंग यू, दे आर प्लेइंग ऑन होम सॉइल. उनको मालूम है कि वो नासुआ काउंटी जो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट में है, तो जो भी ये सोच रहे हैं ना न्यूयॉर्क सिटी में मैच नहीं है, नासुआ काउंटी है उधर थोड़ा दूर. ठीक है, वो उनका होम ग्राउंड है. सो But आई एम I don't think that they can upset India. I don't know about Pakistan. I mean, they can be phenomenal on one day and they can be rubbish on the other. But yeah, I mean that's पाकिस्तान एक मैच तो पक्का हारेगा. यार. मुझे ऐसा लगता है. और फिर उसके बाद उनका कैंपेन ऐसा बदलेगा ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, इनका हमेशा का यही सीन है. ये यार देख, पाकिस्तान में ना, एंड नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. मैं इन जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा था ना यार, उनमें बैटिंग डेप्थ नहीं है, पता है. मतलब रिजवान बाबर और फखर जमान आउट हो गया ना, तो उसके बाद वो थोड़ा सा इधर और अभी क्या करना है. और उनके जितने भी फास्ट बॉलर्स है ना यार, सी I'm very happy that Mohammad Ahmed is making a comeback. He's a world-class bowler. But it's too late, I think, to come to an international stage suddenly and play. Shaheen Shah Afridi, great bowler,
Naseem Shah, great bowler, but the spinners that you have is Shahbaz Ahmed and Imad Wasim. I mean, there are very few players who I would say, हाँ यार ये खेलेगा. पर शाहिद अफरीदी तो बोल रहा है कि the spinners are the best in the world, the pace attack is the best in the world. अरे वो वो form में नहीं है, ब्रैंडन form में नहीं मैकदर है है ना पर वो आ यार. जाएंगे. भाई इंग्लैंड के सामने अभी मैच चल रहा है, लग नहीं रहा है यार. तो आई मीन पाकिस्तानी बैट्समैन हैड नो क्लू. Yeah. इंग्लैंड में जस्ट मतलब समझ में आ रहा था हु इज अ बेटर टीम. But you never know with Pakistan यार, and I'll tell you why. Because ये लोग पता है क्या, हारते हारते आते हैं, nobody gives them a chance, and then suddenly they'll put their A एंड game द on फाइनल. the world stage. मैं मजाक नहीं कर रहा. And they'll go till the final. They'll win it, not win it. That is a different matter altogether. But they, I don't know. You just can't predict Pakistan's performance on any given day. It is as good तेरा as it is तेरा as good as फेवरेट तेरा फेवरेट एसोसिएट टीम कौन सा है? इस साल हाँ. यार. uh, यार बड़ा बड़ा पता है मुश्किल है, because there are a lot of teams which have come with a lot of struggle and lot of stories behind. But yeah, I would want a few teams to do really well. But it'll be very difficult for somebody, for a team like Papua New Guinea to do well. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए. But you just look at how they have come through, what they have come through. ठीक है. Of course, हमने अभी अफगानिस्तान की स्टोरी बताई, but Afghanistan has been there in the mix For a while now, some time now. But look at teams like Papua New Guinea or Uganda for that matter. But yeah, if I have to single out one, uh, looking at the market that they have and the potential that they can probably explore in the game of cricket, considering कि हाँ, there are a lot of fans who are waiting for their team to do well, maybe Nepal. मेरा यूएसए. बिकॉज यूएसए is almost a combination of Pakistan A side, India A side, West Indies A side, New Zealand A side. ठीक है, ये यहाँ के बेस्ट सेकंड बेस्ट प्लेयर्स का एक पूरा टीम है. ठीक है, that is coming out and showing the world that you know what boss, if we get the chance and the right practice and the right this thing, we have a very Uganda very is good India chance. B. Uganda is India B, not India A, but Uganda is हाँ India B or C. हाँ हाँ हाँ. भाई बहुत साउथ ईस्ट यार, बट यार that's how it is. Like the British came to their colonies and spread cricket. Now we've turned it around, bro. Now we go and spread cricket in their colonies. No, but तेरे को पता है क्या? The first international match was played between whom? So the first international match was actually played between USA and Canada 30 years before England and Australia played 1844. a bilateral series. Correct. 1844 में. 30 years ago. 1844 में. You're right. Yeah. Yeah. You're actually right. So 1844. USA was actually the first one to play an international match, and Canada was at the helm of this entire game, and they were the ones who, क्योंकि वहां पे सबसे पहले spread हुआ था. British, but again, They've got a 200-year history of cricket, which just didn't pick. And then they made 1950s their own में version. बेसबॉल आ गया था. 1950 96 ना That बेसबॉल is what शायद they made their own version out of it. But the वो first बेसबॉल game जितना to come पॉपुलर up तो नहीं था. was actually cricket. So yeah, I mean, what you're saying is absolutely right. But what people have to say about USA is the fact that कि हाँ चलो, there are a lot of immigrants who are coming in, and their board and their government banks on these immigrants to evolve cricket, or maybe take cricket forward. But जोफ्रा they आर्चर. don't have a strength in their bowling or batting, or whatever it may be. पर उनके पास वो skill set नहीं है. They're only banking on, let's say, South Asian people coming in and expanding the game there. Otherwise, कल्चरली अगर देखा जाए तो उनके पास बेसबॉल ही है. वो लोग या तो NBA देखेंगे या तो NFL या go for a Super Bowl. देखेंगे, क्रिकेट देखेंगे, थोड़ा जीतना चालू करेंगे, पैसा वैसा आएगा. देखिए अभी अभी ये हो गया ना यार भाई. अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना. पहले क्या होता था? पहले कोई कमजोर टीम नहीं. पहले मैं बताता हूँ ना देखो, 2003 2007 के टाइम में देखा कोई कमजोर टीम रहने का ना, जैसे स्कॉटलैंड या बांग्लादेश, तो वो लोग बेचारा 50 ओवर क्रिकेट कब खेलता था? जब वो लोग क्वालिफाई होने के लिए खेलता था कि हम लोग को भी वर्ल्ड कप खेलने मिले. और फिर डायरेक्ट सीधा पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर. इससे पहले वो ओमान के सामने खेल रहा था. सडनली देयर इज इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. अभी क्या है ना, ये लोग पूरा टाइम प्लेयर्स अलग अलग T20 खेलते रहते हैं. वो काउंटी क्रिकेट में भी जाते हैं,
वो सीपीएल में भी जाते हैं, पीपीएल में भी जाते हैं, तो इतना एक्सपोजर है ना उनको. दे आर एक्सपोज टू बेटर कोचेस, दे आर एक्सपोज टू दैट प्रेशर सिचुएशंस, दे प्ले अ लॉट मोर क्रिकेट around apart from their international thing as a unit less, but they play a lot of T20 cricket, a lot. So that is why if you say one day में खेल पाएंगे कि नहीं, I would say no. Test में भी no, because they don't have that exposure. But T20 cricket, और अगर कभी T20 क्रिकेट होता ही नहीं, तो ना हमें राशिद खान का पता होता, ना हमें अली खान का पता होता, ना हमें सुनील नारायण के बारे में पता होता. सुनील नारायण को हम क्या बोलते हैं, अरे यार प्योरिस्ट क्रिकेटर्स, अरे यार सर फॉरवर्ड डिफेंस आपका बराबर नहीं, आप क्या की. ना कायरन पोलार्ड, ना आंद्रे रसल. आई मीन टू बी प्योरिस्ट वेरी अभी कुछ ऑनेस्ट, प्योरिस्ट रह नहीं है ना यार. नहीं पहले मैं Now था. people are playing test matches also the way T20 हाँ, is supposed to be. नहीं पहले मैं था ऐसा, पता है, जब T20 क्रिकेट है ना, मेरे को भी ऐसा है ऐसे, क्योंकि मैं खुद मार नहीं पाता था ना बॉल को. ऐसे थोड़ी खेलता है कोई, ये क्या 20 ओवर का मैच. बट नाउ व्हेन आई रीड अबाउट इट एंड आई अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट इट्स हैड, उफ लॉर्ड, व्हाट अ फॉर्मेट. बस अभी 10 ओवर नहीं, 20 20 ओवर. It is going to be a format, bro, and it is going to be a very, very uh, lucrative format. Trust me, it is going to, and they are definitely going to scrap away with ये अपना 50 over format, and T10 आएगा ही आएगा for sure, and it's going to be a huge format commercially because it makes a lot of sense. It is making a lot of sense, and the Dubai prototype as such, ठीक है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो गया और वो बड़ा हो रहा है. And hence Saudi Arabia is actually now trying to get in as much private equity as possible in the game, which is now going to completely commercialize the game of cricket. So I don't know, I'm afraid to say that maybe you're not going to see as much one day cricket. I don't know about test cricket, but yeah, at least one day cricket in the next 7 years or 8 years or so. पता है 2020 को छोटा करने के बदले वनडे को छोटा करो, 40 ओवर 40 का ओवर match, का करे. 40 40 ओवर ओवर का आई डोंट नो. पहले आप 60 ओवर का कर रहे थे, फिर 50 ओवर का किया, फिर 40 का किया, फिर एक दिन आप कहोगे नहीं 40 भी ज्यादा है, फिर आप 30 का कर 35 करो. फिर 30 के बाद तो सिर्फ 20 है जो ऑलरेडी चल रहा है. एक दिन आएगा जब 20 भी बहुत ज्यादा लगेगा, तब क्या 5 ओवर का मैच खेलोगे? यार मैं वही यार, देख हर्षा भोगले ने ना बहुत अच्छा एक फॉरवर्ड लिखा था बुक में, ठीक है. उसने बोला था कि T20 क्रिकेट इज a very popular, imagine test cricket and one day cricket being parents, okay, and they have a child called T20 cricket who's very very popular and they've nurtured it and now it's a superstar. Now it's up to T20 cricket to help carry test cricket and one day cricket. अभी T20 क्रिकेट अभी बच्चा होएगा तो वो T20 को भी उठाएगा. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ टाइम, okay, that's where the beauty lies of cricket. 20 overs I understand is a shorter time than 50, but sometimes a lot of people don't watch the middle overs in a 50-over World Cup. They're very interesting if you look at what they're. Similarly in T20, the middle overs are very interesting. और कितना छोटा कर दोगे तो कौन देखेगा यार फिर क्या. अच्छा एक बात बता, The middle overs are today interesting in T20 cricket because there's no concept called middle overs now. That is how the game evolved. पहले थे यार, पहले वो थे 2008 और 2006 और whenever this entire 6 से 14 started. ओवर को मिडिल ओवर बोलते हैं. हाँ, 7 से उसको बोलते हैं. हाँ, पावर प्ले के बाद 6 अपना पावर प्ले, ठीक है. तो 7 से जो है 14 आपका मिडिल ओवर्स पहले बोलते थे. अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है. आप डेटा देख लो उठा के जितने भी, द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग स्कोर्स ऑफ मोर देन 200 220 230 is because people are going berserk even when it comes to middle overs. They don't really care whether they have 4 fielders outside the ring or 5 fielders outside the ring. They just want to attack and take the game through, and rightfully so यार. आपके पास अगर ऑलराउंडर्स हैं, अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ है, आपके पास इम्पैक्ट सब है, तो आप क्यों नहीं वो सारी चीजें करोगे. ऑफ कोर्स इम्पैक्ट सब इसमें नहीं है, बट you look at the amount of all-rounders that some teams like England are playing or teams like Australia are playing, and that is where I feel कि maybe वो जो all-round depth है ना, वो अपना थोड़ा सा लैग कर रहा है भाई. क्योंकि see I know कि कुलदीप यादव can actually bat, he can bat कि मतलब he can maneuver singles with लेके, but can you expect this thing out of Jasprit Bumrah? But can you expect this thing out of course उसने भी 34 रन मारे एक ओवर में, but it's not gonna happen. But not constantly. Yeah, it's not gonna happen every day. And look at even Arshdeep for that matter, or maybe Siraj तो बस आता है तो
वो नहीं उसको तो उसको लोग कहते हैं, देख मारना मैं ही तेरे नहीं को है, वो ट्रस्ट कर पहले रहा से हूँ, तू T20 आउट खेल मत रहा है। होना बस। आउट मत होना, मैं तेरे को ट्रस्ट कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोलता है अश्विन उसको। सो बट ये बैटिंग डेथ है अपने पास, पता है। नहीं है, नंबर 8 तक आप खेलते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट हम पता है 2019 वर्ल्ड कप में ना इंग्लैंड को देख के बोलते थे कि भाई दे आर बैटिंग टिल नंबर 8। ठीक 8। है, उन लोगों ने धीरे धीरे उसको 9 कर दिया है, और अभी धीरे धीरे उनको उसने 10 कर दिया है भाई। ग्यारह जोफ्रा ग्यारह सब आर्चर बैटिंग मारता है भाई, जोफ्रा हाँ, आर्चर बहुत मारता है। अच्छा, वो पहले से बहुत अच्छा ही बैट्समैन हिट है यार। 6, हाँ वो and अभी उसने मारा है यार इसमें चक्का चौका और छक्का, अभी अभी इस वाले मैच में मारा था उसने, सेकंड आई थिंक इट वाज द सेकंड टी20 है। हाँ, अरे वो बैट्समैन है, वो नहीं टेस्ट ये मैच में तो भी हमारे अच्छी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग करता है। वही मैं कह रहा हूँ ना यार। सो दे आर लुकिंग एट पीपल who can bat and bowl now. I think slowly those players are going to fade away, जहां आप सिर्फ एक स्किल पे आप या तो बैटिंग दे सकते हो या बॉलिंग दे सकते हो। अब ऐसा काम नहीं चलेगा, मे बी इन द कमिंग ईयर्स यू गोना सी मोर एंड मोर ऑलराउंडर्स। अरे यंग लड़कों को देख ले यार, नितेश रेड्डी बैटिंग बॉलिंग, अभिषेक शर्मा बैटिंग बॉलिंग, हर्षित राणा बैटिंग बॉलिंग। तू बता दे मेरे को जेन्युइनली टॉप ऑफ द हेड याद नहीं आ रहा है कि कौन सा इमर्जिंग प्लेयर था जो बैटिंग या बॉलिंग में कहीं कमजोर। आई डोंट नो, मे बी आई एम मैं मिसिंग इतना आउट। खुश हुआ यार, मैं इतना खुश हुआ। सो पैट कमिंस ने उसको बॉल दिया नितेश रेड्डी को, एंड आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट गेम और सेकंड गेम दैट ही प्लेड, क्योंकि उससे जस्ट पहले फर्स्ट इनिंग्स में उसने 40-50 रन कुछ मारे। ठीक है, जब पैट कमिंस ने उसको बॉल दिया, मैंने कहा अच्छा चलो स्पिनर होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना वो रन अप करने थोड़ा सा इधर इधर गया, मैंने कहा यार ये उधर क्यों जा रहा है, इतना दूर क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा ये फास्ट बॉलिंग करता है, मैं हमारे तो पास मेरे को भी एक पता नहीं फास्ट था। बॉलर है। यार अभी मेरे को लगता है रिंकू सिंह भी स्टार्ट कर देगा थोड़ा थोड़ा बॉलिंग करना, देख तू, कि गॉड्स ऋषभ पंत ने तो चालू कर दिया है। गॉड्स भाई वो पागल हो गया, गॉड्स प्लान गॉड्स प्लान, ठीक है भाई, क्या हो गया रिंकू भाई, ठीक है। बोले मैं आ रहा हूँ वेस्ट इंडीज, आ रहा है वो वेस्ट इंडीज, बोले नोएडा पहुंच जाऊंगा गया मेरे होगा, को। 28 की फ्लाइट थी उसकी। हाँ हाँ, अच्छा, वाह, क्या बात ये भी बताया वीडियो में भाई उसने, है। मैं आ रहा हूँ भाई, 28 की फ्लाइट है, गॉड्स प्लान। बोले नोएडा क्यों जाएगा, बोला कपड़े। अच्छा, but as predicted rightly by us, KKR is the deserving winner of the IPL. Me and Krishna Yes. said this in a very big podcast one day. It's not there, I don't know why. अरे We we said, can name that podcast. I'm sure we can name that podcast. Please go and see that video also. We yeah, can't name that podcast. I don't know. We can. Okay. Please go and watch it on TV. It's a And we podcast. said KKR. I don't know why is it not there. I said we both said KKR. Yeah. We should be famous by now by saying It's KKR. a We said it. podcast which has it has a podcast which has a lot of fans coming in, a lot of influencers coming in. Though we Yeah, don't like, famous people, plug guys. Come ourselves, on, you guys don't make influencers us coming in famous and too then giving early. their opinions. It has a logo which is green in color. And when you go specifically for our video, it will have Rohit Sharma and Both Gautam of us. Gambhir talking to each other in the thumbnail. So if you click, you'll get the There both is, of us. by mistake, there is a reel also about it on our Instagram profile. Yes, yes. I've come across that. Okay, so guys, we will end this podcast now because it's a little late also. But yeah, we will keep coming up with the teams. We'll dissect teams as we go across. We dissected a lot of teams, but we'll sort of do a lot of player profiling, matchups, etc. Whatever we get our hands on. In the comment section, do let us know if there is something that you want us to, and you have a question about, and probably we can research and to our best of our ability answer that question after researching a lot and telling you that we know this at the back of our hands. So please tell us that. And yeah, do like, share, subscribe on And YouTube. please, guys, please go and watch the podcast that we did with Swapnil Singh. And I think it was one of the most amazing podcasts that we've done so far. Yeah, Because outstanding. yeah, I mean it's You were great. You were something. Yeah, great in that we got a podcast. lot of insights. We got to learn a lot from the insights that were Yeah, given to us, by yeah. an RCB player, an IPL player, and yeah, I mean it's a journey that we'd like to take you along. Learn a bit about the game, educate you guys also as we learn, and yeah, that should Yeah. be it. And guys, if you're expecting any controversial questions from us about, oh, dressing room, my cow, please, we're not going to do that. So don't even expect it. Watch it because you like the game. Watch it because you want to learn like us. Thank you. Good night. Like, share, subscribe.